Paradise, written by the celebrated American poet Robert Frost, is a short yet profound poem that explores two powerful human emotions, desire and hatred. The poem represents a philosophical reflection on how these emotions have the potential to destroy the world. Frost uses the symbol of fire and ice to represent restrictive forces that lie within human nature. Through simple language and compact structure, the poet conveys a universal truth about the conflicting yet equally harmful emotions that humans experience. फायर एंड आइस प्रसिद्ध अमेरिकी कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई एक छोटी लेकिन अत्यंत गहन कविता है जो दो शक्तिशाली मानवीय भावनाओं इच्छा डिजायर और घृणा हेटर्ड का विश्लेषण करती है। कविता दिखाती है कि इन भावनाओं में दुनिया को नष्ट करने की क्षमता है। फ्रोस्ट आग और बर्फ के प्रतीकों का उपयोग मानव स्वभाव में छिपी विनाशकारी शक्तियों के प्रतिनिधि के रूप में करते हैं। सरल भाषा और संक्षिप्त ढांचे के माध्यम से कवि मानव भावनाओं के गहरे और सार्वभौमिक सत्य को प्रकट करता है। द पोएम लाइफ फायर symbolizes uncontrolled desire, passion, and greed and lust. According to Frost, human beings are often consumed by endless wants and ambitions. When desires become excessive, it binds people to morality and self-control. Such fiery emotions can lead to conflict, war, destruction, and ultimately the collapse of society. Frost implies that the world may and due to the burning intensity of human desires if people fail to control their impulses. मतलब क्या निकला? कविता में फायर अनियंत्रित इच्छाओं, जुनून, लालच और वासनाओं का प्रतीक है। फ्रोस्ट के अनुसार मनुष्य अक्सर अपनी असीमित इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं में खो जाता है। जब इच्छाएं अत्यधिक हो जाती हैं तो वे मनुष्य को नैतिक और आत्मनिर्णय से दूर ले जाती है। ऐसी अग्नि जैसी भावनाएं संघर्ष, युद्ध, विनाश और अंततः समाज के पतन का कारण बनती है। फ्रोस्ट संकेत देते हैं कि यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाया तो दुनिया इन्हीं जलती हुई इच्छाओं के कारण समाप्त हो सकती है। The poem is unique because of its ability to convey such a broad philosophical idea in just a few lines. Frost combines scientific theories, emotions, insights, and human philosophy, psychology in a powerful manner. The fire represents the destructive forces of desire, while the ice represent the destructive forces of hatred. Together, they capture the essence of human flaws. Frost implies that while natural disasters might destroy the world, the emotional disasters created by humans themselves are far more dangerous. कविता की विशेषता है कि फ्रॉस्ट ने कुछ ही पंक्तियों में एक विशाल दार्शनिक विचार को प्रस्तुत कर दिया है। उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों, भावनात्मक समझ और मानवीय मनोविज्ञान को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से जोड़ दिया है। आग इच्छा की विनाशकारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है जबकि बर्फ घृणा की विनाशकारी शक्ति का प्रतीक है। ये दोनों मिलकर मानव कमजोरियों की मूल प्रकृति को उजागर करते हैं। फ्रॉस्ट संकेत देते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में वे भावनात्मक आपदाएं अधिक खतरनाक है जिन्हें मनुष्य स्वयं पैदा करता है। Another important idea in the poem is the concept of balance. Frost suggests that human emotions must remain balanced, otherwise they can become destructive. When desire becomes uncontrollable, it leads to chaos. When hatred becomes dominant, it leads to coldness and cruelty. Without emotional balance, human relationship, society, and even the world can collapse. Through this poem, Frost warns readers about the importance of controlling inner emotions before they become catastrophic. कविता में एक और महत्वपूर्ण विचार संतुलन का है। फ्रोस्ट संकेत देते हैं कि मनुष्य की भावनाएं संतुलित रहनी चाहिए, अन्यथा वे विनाशकारी बन सकती हैं।
जब इच्छा अनियंत्रित हो जाती है तो वह अराजकता लाती है। जब घृणा हावी हो जाती है तो वह कठोरता और क्रूरता पैदा करती है। भावनात्मक संतुलन के बिना मानवीय संबंध, समाज और यहाँ तक कि पूरी दुनिया भी बिखर सकती है। इस कविता के माध्यम से फ्रॉस्ट पाठकों को चेतावनी देते हैं कि अपनी आंतरिक भावनाओं को नियंत्रित करना अनिवार्य है, अन्यथा परिणाम भयावह हो सकते हैं। The poem also reflects the dual nature of human behavior. Humans are capable of both intense passion and deep hatred. These emotions may seem positive, opposite, yet they share a common feature. They are both capable of destruction if taken to extremes. Frost uses minimalistic language to communicate the universal truth. His poem serve as a reminder that the downfall of humanity may not come from outside but from the emotional extreme that individual harbor with themselves. कविता मानव व्यवहार की दोहरी प्रकृति को भी दर्शाती है। मनुष्य गहरी इच्छा और गहरी घृणा दोनों का अनुभव कर सकता है। ये भावनाएं भले ही एक दूसरे के विपरीत लगे, लेकिन इनमें एक समानता है, दोनों अत्यधिक रूप से विनाशकारी बन जाती हैं। फ्रॉस्ट अत्यंत सरल भाषा का उपयोग करके इस सार्वभौमिक सत्य को प्रस्तुत करते हैं। यह कविता में याद दिलाती है कि मानवता का पतन बाहरी शक्तियों से नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे इन चरम भावनाओं से हो सकता है। The poem's structure also plays a crucial role in its effectiveness. With only 9 lines, Frost captures a theme that connects science, philosophy, and psychology. The simplicity of the rhyme and rhythm makes the poem easy to remember, while the depth of meaning leaves a lasting impact on the reader. This combination of simplicity and profoundly makes Fire and Ice one of Frost's most appreciated poems. कविता की संरचना भी इसकी प्रभावशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मात्र 9 पंक्तियों में फ्रॉस्ट विज्ञान, दर्शन और मनोविज्ञान को जोड़ने वाला एक विशाल विषय प्रस्तुत कर देते हैं। कविता की तुकबंदी और लय इसे याद रखने में आसान बनाती है, वहीं इसके गहरे अर्थ पाठक पर स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। सरलता और गहराई का यह मेल फायर एंड आइस को फ्रॉस्ट की सबसे प्रशंसित कविताओं में शामिल करता है। The poet also hints at the scientific theory of the world's end. Scientists believe that the Earth could either freeze or burn depending on cosmic events like the sun's expansion or drastic climate changes. Frost cleverly blinds this scientific data with human emotions, making the poem both realistic and symbolic. By connecting the physical world with emotional experience, he gives the poem a natural appeal, यूनिवर्सल अपील। कवि विश्व के अंत से संबंधित वैज्ञानिक सिद्धांत की ओर भी संकेत करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी या तो अत्यधिक गर्मी से जल सकती है या अत्यधिक ठंड से जम सकती है। यह वह ब्रह्मांडीय घटनाओं जैसे सूर्य का विस्तार या अत्यधिक जलवायु परिवर्तन पर निर्भर करता है। फ्रॉस्ट इस वैज्ञानिक विचार को मानवीय भावनाओं के साथ जोड़ते हैं, जिससे कविता वास्तविक और प्रतीकात्मक दोनों बन जाती है। भौतिक दुनिया और भावनात्मक अनुभवों के इस मेल के कारण कविता सार्वभौमिक रूप से आकर्षित बनती है। Ultimately, Fire and Ice serves as a moral lesson for the modern world. It teaches that internal emotions conflict are more dangerous than external threats. Human beings often blame disasters and fate for their downfall, but Frost argues that the true threat lies within the human heart. If individuals learn to regulate their desires and hatred, they can protect themselves and the world. The poem encourages self-awareness, emotional control, and responsible behavior. अंततः फायर एंड आइस आधुनिक दुनिया के एक नैतिक शिक्षा के रूप में काम करता है। यह सिखाता है कि आंतरिक भावनात्मक संघर्ष बाहरी खतरों से भी अधिक विनाशकारी है। मनुष्य अक्सर अपने पतन का दोष प्राकृतिक आपदाओं को या भाग्य पर डालता है, लेकिन फ्रॉस्ट का तर्क है कि वास्तविक खतरा मनुष्य के भीतर ही छिपा है। यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं और घृणा को नियंत्रित कर ले तो वे स्वयं दुनिया दोनों को बचा सकता है। कविता आत्म जागरूकता, भावनात्मक नियंत्रण, जिम्मेदारी व्यवहार को प्रोत्साहित करती है।
In conclusion, the poem is a powerful reflection on human emotions and their impact on the world. Frost warns that the world might not require a natural disaster for its end, human emotions alone are enough. His message is timeless because even today society deals with issues caused by excessive desire and growing hatred. Fire and Ice remains relevant because it mirrors the emotional challenges humans face and reminds us of the need for balance, compassion, and self-control. अंत में कविता मानव भावनाओं और उसके प्रभाव पर एक शक्तिशाली चिंतन प्रस्तुत करती है। फ्रॉस्ट चेतावनी देते हैं कि मनुष्य मतलब दुनिया को समाप्त होने के लिए किसी प्राकृतिक आपदा की आवश्यकता नहीं है। मानव की भावनाएं उसके गुण ही पर्याप्त हैं। उनका संदेश आज भी उतना सटीक और प्रासंगिक है और बढ़ती घृणा से उत्पन्न समस्याओं से जूझ रहा है। फायर एंड आइस प्रासंगिक है। आज हम देखते हैं कि एक देश दूसरे पे आक्रमण कर रहा है, उसको हड़प रहा है, तो ये क्या है? एक प्रकार से डिज़ायर है, इच्छा है। हेटेड का मतलब नफरत, दो देश आपस में बोलते ही नहीं, दोनों ही खतरनाक स्थिति है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं मैं बता रहा हूँ, उन्हें गौर से सुनना, एग्जाम के लायक है। व्हाट डज फायर सिम्बोलाइजेस इन द पोएम? इस कविता में फायर का मतलब क्या है? फायर का मतलब आग नहीं है, इसका मतलब डिजायर, इच्छा। व्हाट डज आइस सिम्बोलाइज? इसमें बर्फ का मतलब क्या है? आइस का मतलब बर्फ नहीं है, या मतलब है हेटेड। अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट व्हाट कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड? कवि के अनुसार इस संसार को कौन खत्म कर सकता है? इमोशनल एक्सट्रीम्स, भावनात्मक जो विचार हैं, गंदे विचार, वो खत्म कर सकते हैं। हाउ मेनी लाइन डज द पोएम हैव? इस कविता में कितनी लाइन है? मोर। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम? इस कविता का केंद्रीय भाव क्या है? डिस्ट्रक्टिव इमोशंस, विध्वंसात्मक भावनाएं। उसके बाद क्या है? एक्सप्लेन हाउ डिजायर्स कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द पोएम। इसमें ये एक्सप्लेन करना है कि इच्छाएं किस प्रकार से इस संसार का खात्मा करेंगी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि कवि ये बताते हैं कि यदि इच्छाएं नियंत्रित न हो तो वे दुनिया को विनाश की ओर ले जा सकती हैं, क्योंकि अतिशय इच्छाएं मनुष्य को अंधा कर देती हैं। एक देश की इच्छा है कि यार मैं इतना प्रॉपर्टी फैलाऊं, इतना पैसा करूं, ये वो, तो दूसरे देश, छोटे देश की तरफ ध्यान नहीं देते, उसको बर्बाद कर देते हैं देश। हाउ डज हेट्रेड एक्ट लाइक आइस इन द पोएम? नफरत को बर्फ की संज्ञा क्यों दी गई है? हम कह सकते हैं कि घृणा लोगों के बीच दूरी और शत्रुता पैदा करती है, इससे संबंध कमजोर हो जाते हैं और फिर देश की बर्बादी होती है, व्यक्ति की बर्बादी होती है। वाई डज फ्रॉस्ट कंसिडर बोथ फायर एंड आइस कैपेबल ऑफ एंडिंग द अर्थ? फायर एंड आइस दोनों इतने शक्तिशाली क्यों बताए गए हैं फ्रॉस्ट के द्वारा, दोनों बर्बाद कर सकते हैं? फायर का मतलब अनियंत्रित इच्छाएं और आइस का मतलब क्या होता है? नफरत। तो इच्छा ज़्यादा या नफरत होना, दोनों ही क्या खतरनाक। हाउ इज द पोएम philosophical defect being very short? What moral lesson does the poem teach to the modern generation? आधुनिक जो जनरेशन है उसको ये क्या शिक्षा देती है पोएम? ये कहती है कि व्यक्ति की जो दो गंदी भावनाएं, उनको पतन, उनका छोड़ना चाहिए आदमी को। कौन सा? ये तो किसी से नफरत करना और एक अनियंत्रित इच्छा, ये दोनों ही आदमी के पतन का कारण बनती है।